سے دوبارہ سے پڑھتا ہوں مزامیر کی کتاب، زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 149واں زبور، اس کی 6 سے 9 آیت میں یوں مرقوم ہے: ان کے منہ میں خدا کی تمجید، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ توجہ سے بھی، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ان کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد کرو، آمین۔ آج میرے عزیزو ہم 6 سے 9 آیت تک دیکھیں گے، اور اس میں جو بنیادی آیت ہماری ہے وہ 6 اور 9 کو ملا کے یہ ٹاپک، یہ موضوع بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے منہ میں 2 دھاری، ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ان کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، ان کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، آمین۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید ہو اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہو؟ لکھا ہے کہ 2 دھاری تلوار ہو، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ اسی سوال کا جواب آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ خدا ہر شخص کو، اپنے ہر بیٹے اور بیٹی کو، ہر ایماندار کو اپنے کام کے لیے اور کلام کے پرچار کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ لکھا ہے کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ان کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس کے تعلق سے بات کروں، میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ اس بات کے تعلق سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو یاد رکھا کریں، دل سے سنا کریں، غور سے سنا کریں اور دل میں رکھا کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ بڑی زبردست آیت ہے، بڑا موضوع ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم آنے والے دنوں میں اس تعلق سے سیکھیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت لکھی کہ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ تو یہ آیت آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے سینٹ جان اسکول میں ایک ہماری بہن جو تھی وہ اسلام آباد سے آئی تھی، ہم تو ادھر مطلب پڑھاتے تھے، تو کنونشن کا پروگرام تھا، تو اس میں یہ آیت انہوں نے سنائی تھی، انہیں اظہار خیال کا موقع دیا گیا، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ ہمیں ایک بہت بڑا فخر حاصل ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم توجہ سے خدا کے کلام کو یاد رکھتے ہیں تو پھر وہ ہماری زندگیوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس بہن کے لیے، ان کا نام تو مجھے اب اس وقت یاد نہیں، لیکن ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے یہ ایک آیت بولی تھی اور یہ آیت مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس کے اندر کتنا بڑا موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے منہ میں خدا کی تمجید ہو اور ان کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ کیوں ہو؟ اس لیے کہ پاک کلام کے اندر لکھا تاکہ وہ قوموں سے انتقام لیں، امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا تاکہ وہ ان کو وہ سزا دیں جو ان کے لیے مرقوم ہے، جو مقرر ہے، اور یہ شرف اس کے 1-2 نہیں بلکہ سب مقدسوں کو حاصل ہے۔ آج ہم کلام مقدس میں یہ سیکھیں گے کہ یہ فتح مندی کا شرف ہے، یہ فتح مندی کا راز ہے، یہ فتح مندی کا بھید ہے میرے عزیزو، جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ فتح مند زندگیاں گزاریں، کامیاب زندگیاں گزاریں، وکٹوریس لائف ان کی ہونی چاہیے۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اور یہ شرف خدا نے ان کو دیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں
तो हमें पता चलता है यहां पे लिखा गया है कि वो कौमों से इंतकाम लें, उम्मतों को सजा दें, बादशाहों को जंजीरें पहनाएं, उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि वो सजा दें जो उनके वास्ते मरकूम है। मेरे अजीजों, जब हम इस आयत को देखते हैं, इस जबूर को पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये पुराने अहदनामा के तुराजर में लिखा गया जबूर है और खुदा का पाक कलाम बयान करता है उस वक्त से तल्लुक रखता है कि जब खुदा अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल के लाया तो उन्हें बहुत सारी जंगें लड़ना पड़ी। बुजुर्ग मूसा की मुआवनत में, बुजुर्ग यशवा की, जदून, दाऊद और बहुत सारे जो दूसरे सिपा सालार थे, उनकी रहनुमाई में उन्हें बहुत सारी जंगें लड़नी पड़ी। उन्हें बहुत सारी कौमों का मुकाबला करना पड़ा, कभी कनानियों से, कभी फिलिस्तियों से, कभी अमालिकियों से उन्हें दो हाथ करने पड़े। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि उन्हें ये आजाद हासिल था, उनके पास ये खुदा का इख्तियार था। लिखा है कि उनके मुंह में खुदा की तमजीद और उनके हाथ में दोधारी तलवार हो, उसके सब मुकद्दसों को यह शर्फ हासिल है। उन्होंने उन पर फतह याबी पाई और खुदा का कलाम बयान करता 6 बल्कि 7 कौमों का उन्होंने मुकाबला किया और बेशुमार बादशाहों को उन्होंने शिकस्त दी। और खुदा का कलाम इसीलिए बुजुर्ग दाऊद के बारे में कहता है कि जब बादशाह अपने महल में रहने लगा तो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता खुदा ने उसे उसके सब दुश्मनों से रिहाई बख्शी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमें कौमों को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, बादशाहों को सजा देने की जरूरत नहीं है, यानी लोगों से लड़ने की हमें जरूरत नहीं है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने हर कौम और कबीले का ऐसा अहसन इंतजाम कर दिया। हमारी गवर्नमेंट की तरह से ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी अफवाज दी है जो अपने लोगों की हिफाजत करती है। इसलिए आज हमें जिस्मानी तौर पर किसी के खिलाफ जंग बर्पा करने की जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे निजात दहिंदा ने तो हमें यह दर्श दिया है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, अपने सताने वालों का भला चाहो, खुदा का कलाम बयान करता है। लिहाजा आज जिस्मानी नहीं, खुदा का कलाम कहता फिजिकली इन कौमों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता खुदा का कलाम बयान करता है एक उससे भी खतरनाक दुश्मन है जिससे हमें लड़ने की जरूरत है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि बनी इसराइल को तो कौमों के खिलाफ, कबीलों के खिलाफ, उम्मतों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ लड़ना पड़ा और खुदा ने उन्हें फतह याबी दी। जब अहद चेंज हो जाता है तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है सारी चीजें बदल जाती हैं। चुनाचे आज खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है। पौलुस रसूल फरमाते हैं इफिसियों के खत के 6 बाब के 11वीं से 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वो फरमाता है खुदावंद के जोर में मजबूत बनो, इसलिए कि हमारी लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, तारीकी के हाकिमों, शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। तो आज खुदा का कलाम बयान करता है हमें उनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है और उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है जब उनके खिलाफ लड़ना है तो फिर क्या करना है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है उनके पास हथियार होगा कि उनके मुंह में खुदा की तमजीद होगी, खुदा की हाई प्रेज उनके मुंह में होगी और उनके हाथ में दोधारी तलवार होगी और वो अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। मेरे जीजो, खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि जब अहद बदल जाता है, खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि वहां पर सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। आज खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं, पाक कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं हैं, यानी खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की रूहानी फौजों के खिलाफ, अबलीस के खिलाफ जो हमारा खुला दुश्मन है। मुकद्दस पतरस रसूल फरमाते हैं कि वो बिफरे हुए शेर की तरह से धाड़ता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। आज उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। वो अबलीस, वो नामनहाद शेर जो घरों के अमन, सुकून, सलामती को तबाह बर्बाद किए हुए है, उसके खिलाफ आज सीना सिपर होने की जरूरत है। खुदा का कलाम बयान करता है उसके लिए क्या करने की जरूरत है। हमारे मुंह में खुदा की तमजीद हो, हाथों में दोधारी तलवार हो और खुदा का कलाम बयान करता है हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए चले जाएं। मेरे चीजों कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि अगरचे बनी इसराइल ने जिस्मानी तौर पर जंगें लड़ी हैं, कभी कनानियों के खिलाफ, फिलिस्तियों के खिलाफ, अमालिकियों के खिलाफ, मुदियानियों के खिलाफ जंगें लड़ी हैं,
लेकिन वहां पर भी खुदा का पाक कलाम हमें बयान करता है कि उनकी ज़ाहिरी जिस्मानी के साथ साथ उनके लड़ने के हथियार जो थे वो रूहानी ही थे। ज़बूर 20 वाला कहता है कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का नाम लेंगे। आप पिछले दिनों का बड़ा जबरदस्त मैसेज सुन चुके हैं खुदा के खादिम के तवस्सुस से, और वो ये था कि परस्तश के जरिए से फतह। आपने उसमें देखा था कि जब फलक बोस यरू के कला को फतह करने के लिए खुदा ने किस तरह से अपने लोगों को इस्तेमाल किया था। खुदा का पाक कलाम कहता है वहां पे नरसिंगे को, वहां पर खुदा की तमजीद को, खुदा के जलाल को इस्तेमाल किया गया। जब लोगों ने, पाक कलाम ये बयान करता है, परस्तश करना शुरू की, नारे लगाने शुरू किए, तो यरू की दीवारें गिर गई। मुद्यानियों की लाखों की तादाद में खुदा का कलाम बयान करता है जदोन जो है वो चंद 100 लोगों के साथ खुदा का पाक कलाम बयान करता है, थोड़े लोगों के साथ ही लड़ने के लिए जाता है और फतह याब होकर लौटता है। वहां पर भी मेरे चीजों में पता चलता है, जब हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि जब कहते हैं ना कि उनके मुंह में खुदा की तमजीद हो, तो इसका मतलब ये है, उस दिन भी हमने सीखा था और मैंने उस दिन जो खुदा के लोग परस्तश करते हैं उनको इस वाले से अप्रिशिएट भी किया था कि कलाम कहता है कि परस्तश ईमानदारों का एक जंगी हथियार है, एक जंगी हथियार है जिसे वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। और फिर इसके बाद लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं इब्रानियों के खत के 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि अब खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है, 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, रूह बंद गुदे गुदे को जुदा करके गुजर सकता है। मेरे जीजों, खुदा का कलाम बयान सो जंग लड़ने का, अबलीस से टक्कर लेने का, अबलीस से 2-2 हाथ करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हमारे मुंह में खुदा की तमजीद हो, हाई प्रेज ऑफ द गॉड, खुदा की तमजीद हो, जिंदा यहोवा खुदा की हम मुंह से प्रस्तश करें, हमारे मुंह में खुदा की गवाही हो, खुदा की प्रस्तश हो। मेरे अजीजों, और फिर दूसरा हथियार खुदा का पाक कलाम बयान करता है, रूह की तलवार। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। खुदा का कलाम हमारे हाथों के अंदर, और खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। और यहां पे हाथों का इशारा जो है, जब हम कलाम की तरफ इशारा करते हैं तो डेफिनेट इसका मतलब यही है, बाइबल हाथ में होने का मतलब यह है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें। जब आप इब्लीस के खिलाफ खड़े हों तो खुदा का कलाम में यह बयान करता है कि फिर क्या होगा। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि हम खुदा की प्रस्तश के जरिए से इब्लीस पर हमला करेंगे। यह हमारा जारहाना हमला करने वाला हथियार होगा, और खुदा का पाक कलाम जो है ये हमारा जो है डिफेंस करेगा, हमारी मुहाफजत करेगा, हमारी निगहबानी करेगा। जिसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बनी इसराइल के दुश्मन जो थे वो जिस्मानी थे, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि किसरिसिया के दुश्मन जो है वो रूहानी है, शरारत की रूहानी फौजें हैं जो खलअंदाज होती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। जब वहां पे खुदा का कलाम बयान करता है, अहद बदल जाता है तो दुश्मन भी तब्दील हो जाता है, और जब दुश्मन तब्दील हो जाता है तो फिर हथियार भी तब्दील हो जाते हैं। आज इब्लीस के खिलाफ तलवारों से, तेगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, इससे उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप देखते होंगे कि कई दफा लोग जो हैं वो जब बदरूओं को देखते हैं तो लोग, कई बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, कई लोग उनको मार मार के निकालने की कोशिश करते हैं, सजाएं देने की कोशिश करते हैं। ना टटाल, ये तलवार उस पर कारगर नहीं हो सकती। खुदा का कलाम जो है उसके अंदर ये कुव्वत और कुदरत है, खुदा की प्रस्तश के अंदर ये कुव्वत और कुदरत है कि खुदा उन्हें भस्म कर सकता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस ये बयान करता है, आज हमें देखने की जरूरत है कि खुदा ने हम सबको ये शर्फ दिया है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह की बाबरकत जिंदगी जो है, जबरदस्त जिंदगी जो है, वो हमारे लिए बड़ा जबरदस्त नमूना है। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करने वाले थे तो आपको पता है कि उसी वक्त इब्लीस ने उन्हें आजमाया था, उनकी भी आजमाइश हुई, मुकाबले के लिए आ गया। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है बियाबान के अंदर मुकाबला करने लगा और 3 दफा खुदा यीशु मसीह की आजमाइश की। पहले जब देखा कि 40 दिन हो गए, भूखे हैं, तो कहा कि आप तो खुदा के बेटे हैं, बल्कि उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो उन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। ठीक है, तो खुदा यीशु मसीह ने कलाम से कैसे डिफेंस किया? उन्होंने कहा यह भी लिखा हुआ है कि आदमी रोटी ही से जीता नहीं रहेगा,
हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम कह रहा है ये है कलाम की तलवार, ये है रूह की तलवार चल रही। और फिर खुदा का पाक कलाम बयान करता है, इसके बाद जब यहां पे वो फेल हो गया तो फिर उसने क्या किया? खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह को कुंगरे पर ले गया, ऊपर खड़ा करके कहा कि यहां से आप छलांग लगा दें, क्योंकि आपके बारे में लिखा हुआ वो तेरी बाबत हुक्म देगा, फरिश्तों को हुक्म देगा कि सब राहों में तेरी हिफाजत करें। तो आपने फिर खुदा का कलाम बयान करता कलाम का दूसरा बार किया और आपने फरमाया कि यह भी लिखा हुआ है, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। खुदा का पाक कलाम यह बयान करता है, फिर दूसरी दफा मुंह की खानी पड़ी और तीसरी दफा खुदा का पाक कलाम यह बयान करता है, दुनिया की सारी सल्तनतें, सारी शान शौकत दिखाकर खुदा का पाक कलाम यह बयान करता है कि कहने लगा कि मैं ये सारा कुछ आपको दे दूंगा। मुकद्दस लूका इस बात की वजाहत करते हैं, उसने कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी सारी शान शौकत मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसी कलाम की तलवार का हमला करते हुए अपना डिफेंस किया और आपने फरमाया कि उसने कहा कि मुझे सजदा कर, यानी अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। खुदा का पाक कलाम बयान करता खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये लिखा खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और फिर खुदा का पाक कलाम बयान करता है मेरे अजीजों, इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के पास से भाग गया, चला गया। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार उस दोधारी तलवार से हमला कर करके खुदा का कलाम कहता उसे जख्मी और घायल कर दिया और वो वहां खड़ा होने के लायक ना रह सका और निकल गया। आज भी खुदा का कलाम बयान करता है कि उसके सब मुकद्दसों को यह शरफ हासिल है कि उनके मुंह में हमेशा खुदा की तमजीद होती है और उनके हाथ में दोधारी तलवार होती है और उसी के जरिए से वो इब्लीस की फौजों में तहलका मचा सकते हैं और उसको तय तेक कर सकते हैं। मेरे तो कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि सिर्फ यहां पर ही नहीं, बल्कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई एक मकामात पर फिर इसने खुदा यीशु मसीह से जो है वो पंगा लेने की कोशिश की है। खुदा का कलाम बयान करता है बागे गतसमनी के अंदर ही आपको मार देने की कोशिश की है। खुदा का पाक कलाम बयान करता वहां पर ही ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसी ऐसी सोचें आपको देता रहा है, डराता रहा है। पाक कलाम ये बयान करता है आपने तो जिस्मानी सतह पे ये बात कही कि अगर हो सके तो ये मेरा प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन वो आपको इस तरह के थॉट्स देता रहा कि ये सलीब बहुत भारी है, ये मामला बहुत मुश्किल है, तू मर जाएगा। खुदा का पाक कलाम बयान करता है यीशु मसीह ने कहा अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। सलीब उठाई और कलवरी तक चले गए। रास्ते में कहता है खून बहा, कोड़े लगाए गए यीशु मसीह को और वहीं पर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सलीब पर गए और खुदा का पाक कलाम बयान करता है मुए दफन हुए और फिर तीसरे दिन फतवार जो खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि मुर्दों में से जी उठे। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है मौत को, गुनाह को, कब्र को, इब्लीस को ललकारा क्या मौत तेरी फतह कहां रही है, मौत तेरा डंग कहां रहा। मेरे जीजो खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है यूं बुरी तरह से इब्लीस को धूल चटाई खुदा यीशु मसीह ने। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है इसलिए आज भी ये जो सलीब है ये फतह याबी का निशान है। मेरे जीजो ये कुदरत का निशान है, इसीलिए इसके बारे में ग्रंथियों का लिखने वाला कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो मगर हम निजात पाने वालों के लिए जिंदा खुदा की क्या है, कुदरत है। इसलिए आज भी इब्लीस से सलीब से डरता है क्योंकि ये फतह याबी का निशान है। इसी पर खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस, मौत, गुनाह और अपने सारे दुश्मनों पर फतह याबी का शादियाना बजा रखा है। चुनाचे मेरे अजीजों खुदा का पाक कलाम आज हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि उनके मुंह में क्या हो, उनके मुंह में खुदा की तमजीद हो, उनके हाथ में दोधारी तलवार हो, उसके सब मुकद्दसों को ये शरफ हासिल है। मेरे अजीजों खुदा का पाक कलाम आज हमें सिखाता है, जो चीज सीखने वाली है वो देखने वाली है, वो ये है कि आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर मेरे अजीजों खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदा के बेटे बेटियां होने के नाते से हम खुदा के इलाही खानदान में नामजद हो जाते हैं। पाक कलाम ये बयान करता है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील पहले बाब में ही लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं।
और जब वो खुदा का कलाम ये बयान करता है, ईमान रखते हैं, तो वो मसीह के हम मेरास बन जाते हैं, खुदा के वारिस बन जाते हैं। और जो इस्तेहकाकात, जो इख्तियारात, जो मेरास मसीह की है, वो उनकी बन जाती है। इसलिए खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये जो फतहमंदी का शर्फ है, ये जो कामयाबी का शर्फ है, खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसमें हमारी अपनी जात का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के इस फतह में हम शरीक हो जाते हैं। वो इख्तियार हमें दे दिया जाता है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था मुकद्दस मत्ती की इंजील के आखिरी चैप्टर में कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। आज जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और देखो मैं हमेशा तक, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपको पता है खुदा यीशु मसीह जब अपनी खिदमत को जारी रखे हुए थे, तो उस वक्त जब उन्होंने 70 शागिर्दों को ब्लेस किया, मखसूस किया, उनाइट किया, उन्हें भेजा, और जब वो वापस आए बड़े शादमान लौटे, और उन्होंने आके कहा कि खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। प्रेज द लॉर्ड, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। और देखें बनी इसराइल ने ज़ाहिरी और जिस्मानी जंगें लड़ी हैं, लेकिन जो दुश्मन नजर नहीं आता उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून में वो पावर है, उसके इख्तियार और अथॉरिटी में वो पावर है। मेरे चीजों जो चीजें नहीं है, खुदा का पाक कलाम बयान करता, वो उनको भी, जो चीजें हमें नजर नहीं आती जाहिरी आंखों के साथ, वो उन सबको भी देखता और वो उसकी नजरों के सामने है। चुनाचे खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब उन्होंने बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। मेरे जीजो, उसका मतलब यह है कि वो आसमान से गिरा है ताकि जमीन वालों को गिरा दे। ठीक है, वो हमारे सिस्टम को, निजाम को, सोचों को, ख्यालों को, अरादों को ख्याल का खराब कर दे और खानदानों में अफरा तफरी डाल दे। खुदा यीशु मसीह ने पहले से ये तनबीह करके पाक कलाम बयान करता, उसके बाद फरमाया देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, मैंने तुमको इख्तियार, ये है शरफ, ये है वो एजाज, ये है वो इज्जत, ये है वो ऑनर जो खुदा का कलाम बयान करता है, उसके सब मुकद्दसों को हासिल है जो उस पर ईमान। मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ, तुम्हें किसी चीज से हरगिज नुकसान ना पहुंचेगा। खुदा का पाक कलाम बयान करता, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो लोग अच्छे हो जाएंगे। ये शर्फ उसके सब मुकद्दसों को हासिल है। क्या ये शर्फ आज हमें हासिल है? मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने बड़े बड़े, आप भी जानते हैं, कुछ केस यहां भी आए, और इसके अलावा दूसरे बहुत सारी जगहों पे खुदा ने इस्तेमाल किया। ये पिछले दिनों का भी बात है, हमारे करीब के एरिया में वो बेटी ने एक ने फोन किया एक दिन कि अबलीस उन्हें रात को तंग करता है, सोने नहीं देता, उनके बेड पर जो है वो बड़ी परेशानी बन जाती है, तो रात को नहीं सोने देता। कभी वो उनकी बेटी है छोटी, उनको तंग करता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं गया, खुदा के फजल के वसीला से खुदा के नाम को इज्जत और ऑनर मिले। हम लोग वहां पे बैठे, दुआ करना शुरू की, हमने एक कोर्स गाया, उसके बाद दुआ की, और जब दुआ खत्म की तो उस बेटी ने गवाही दी कि पारी साहब जब आप दुआ कर रहे थे, मैंने देखा कि सारे कमरे के अंदर बड़ी जोर की आग जल रही थी और नीचे से लपटें जो थी वो बड़ी ऊपर जा रही थी, इतनी जोरदार आग। उसने कहा कि मैंने इससे पहले मैंने नहीं कभी देखी ऐसी आग। सारे कमरे के अंदर वो आग जो थी वो रोशन थी और जल रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप दुआ कर रहे थे तो एक फरिश्ता आपके दाहिने था और दूसरा आपके बाएं था। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी। और मेरे जीजों, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये खुदावंद की शफकत और मोहब्बत मेहरबानी है। हम इसी तरह से एक और इलाके के अंदर थे, वहां पर दुआ करने में, वहां पे एक बहुत अबलीसी, बहुत जिनसी और बहुत गंदी बदरू थी, एक बेटी को तंग करती, बहुत बुरी बदरू थी। रात को अक्सर वो कभी बच्चे के बेद में कभी किस तरह से आ जाती और बड़ा से तंग करती, उनके दूध को अक्सर खराब कर देती, चीजों को उल्ट पलट कर देती। बड़ा लोगों ने डराया हुआ था। जब हम वहां पर दुआ करने के लिए गए, वो उसी तरह से दुआ हमने की, और जब खुदा के रूह ने छुआ, वो बेटी रिलीज हुई, आजाद हुई, तो उनकी जो वालदा उनके साथ थी, उन्होंने कहा भाई साहब खुदावंद आपको बरकत दे,
खुदा आपको अपने बड़े गहरे जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने देखा कि जब आपको पता ही जैसे मैं दुआ करता हूं तो मैं ऐसे कर चल फिर के दुआ कर रहा था, क्या मैंने अपनी आंखों के साथ देखा कि जिस तरफ आप जा रहे थे खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके साथ था, उसी तरह मूव कर रहा था, उसी तरह से जा रहा था। हालेलुया। ये शर्फ उसके सब मुकद्दसों को हासिल है, ये शर्फ उसके सब मुकद्दसों को हासिल है। खुदा का कलाम ये बयान करता है इसलिए कि उनके मुंह में खुदा की तमजीद हो, और तमजीद का लफ्ज हाई प्रेज के लिए इस्तेमाल होता है। वो ऊंचे सुरों में खुदा के लिए गाते हैं, वो जोर से गाते हैं खुदा के कलाम के लिए, इसलिए कि खुदा के लोगों का प्रस्तुत जो है वो खुदा के लोगों का हथियार है। जब वो गाना शुरू कर देते हैं, बजाना शुरू करते हैं, इब्लीस की सरहदों में, हदों में, उसके लश्करों में खुदा का पाक कलाम बयान करता आग लग जाती है, और खुदा का पाक कलाम बयान करता जुए और बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों में हमने बताया था, आपको बताई थी, वो जो लदरा में हम गए थे वहां पे वो बहन थी 14 साल से अब बदरुओं ने उन्हें जकड़ा हुआ था, और बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, साथ ही चर्चा, साथ ही जो है वो दूसरे लोग जो रात दिन इबादत करते हैं, वो सारे पता नहीं कहां से ये सारे काम किए, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता आजादी और रहाई नहीं मिली, खुदा ने उन्हें रिलीज किया, आजाद किया, और वो बिल्कुल मुतमिन है। कहना ये चाहता हूं मेरे अजीजों कि खुदा की शुक्रगुजारी, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का मुंह तोड़ा, कलाम मुकद्दस ये बयान करता है गरासीनियों के इलाके में खुदावंद यीशु मसीह जाते हैं, वहां पे एक शख्स जो कब्रिस्तान के अंदर रहता है, और साल हर साल से उसकी जिंदगी अजीरन है, वो नंगेपन का शिकार है, और मेरे अजीजों यही इब्लीस की कोशिश होती है कि वो इंसान को नंगा कर देना चाहता है, गंदा कर देना चाहता है, मार देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए कि लिखा इब्लीस नहीं आता मगर चुराने, हलाक करने और मार डालने को, मगर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा का पाक कलाम बयान करता है जब खुदावंद यीशु मसीह का उससे सामना हुआ और पूछा गया तो तेरा नाम क्यों? कहा हम लश्कर हैं। हम क्या हैं? लश्कर हैं। खुदा का कलाम बयान करता है उसे ये नहीं पता कि आज वो जिसके साथ उसका टाकरा हो रहा है, जिसके साथ उसका आमना सामना है, वो लश्करों का रब है, वो रब्बुल अफ़वाज है जो वहां पे खड़ा है। खुदा का पाक कलाम बयान करता, हुक्म दिया, और खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि वो जो सूअर जो थे 2000 से ज्यादा उनकी तादाद थी, इसका मतलब 2000 से ज्यादा बदन हुए शख्स के अंदर थी। लश्करों के लश्कर, वो लश्करों का रब है। हम जिसके मानने वाले हैं वो लश्करों को पैदा करने वाला, लश्करों का खालिक खुदा है। खुदा का कलाम बयान करता है इसलिए वो लश्करों पर फातिह है, और अपने लोगों को यह शर्फ देता है कि उनके मुंह में उसकी तमजीद हो और उनके हाथों में ये दोधारी तलवार हो। खुदा का कलाम बयान करता है इब्लीस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इब्लीस की हदों में, सरहदों में दाखिल हो सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि उनके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपको पता है कि जो हम कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं, ये फतहमंद जिंदगी का राज है, ये फतहमंदी का भेद है, ये एहसास है, ये ऑनर है, ये जलाल है, ये इज्जत है जो खुदा ने अपने लोगों को दी है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है शागिर्दों को क्या कहा? मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचल दो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ, तुम्हें किसी से जर्र ना होगा। और साथ फरमाया कि जो कुछ मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, जो जमीन पर खोल दोगे आसमान पर खोला जाएगा। आज खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम इस इब्लीस को देखते हैं, कलाम ये बयान करता है इसके लिए जरूर है कि जैसे खुदा ने इसे आसमान से निकाला था, बागे अदन से निकाला था, खुदा चाहता है आज वो हमारी जिंदगियों से निकाला जाए, खानदानों से निकाला जाए, चर्चेस से निकाला जाए, हमारे बदलों से निकाला जाए, सोचो ख्यालों से निकाला जाए, हमारे मोबाइलों से निकाला जाए, क्योंकि इसके लिए निकाला जाना जरूरी है। इसका मुकद्दर ये है, उसके सब मुकद्दसों को यह शर्फ हासिल है कि उनके मुंह में खुदा का कलाम बयान करता है खुदा की तमजीद और उनके हाथों में दोधारी तलवार हो। खुदा का पाक कलाम बयान करता है इसका दूसरा इसका मुकद्दर ये है, खुदा का कलाम बयान करता है कि इसे बांधा जाए, इब्लीस को बांधा जाए, खुदा के लोगों को आजाद किया जाए। और खुदा का कलाम बयान करता फिर से थाकड़े में डाला जाए। खुदा का पाक कलाम बयान करता ये हमारे निजात दहिंदा का कमाल है। आज उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के इस छोटे से खादम को खुदा ने बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया है, बदरूहों के लश्करों को जलते हुए देखा है। खुदा का पाक कलाम बयान करता मसीह के नाम की वो कुदरत है, इसीलिए लिखा है कि उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है।
और उस हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, टिकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा। ये वही है जिनके बारे में फरमाया कि आसमानियों का घुटना, ये रूहानी फौजों की, शैतानी फौजों की बात की जा रही है। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें इस दुश्मन से डरने के लिए बल्कि दलेर होकर लड़ने की जरूरत है, इसका मुकाबला करने की जरूरत है, इसे शिकस्त फास देने की जरूरत है। क्योंकि खुदा का पाक कलाम पता क्या बयान करता, जरा तवज्जो से सुने। कलाम ये बयान करता है कि हमारा दुश्मन जो है वो कभी हमें हरा नहीं सकता। क्यों नहीं हरा सकता? इसलिए कि वो पहले ही हारा हुआ है। सलीब के ऊपर पहले ही इसकी जान निकली हुई है, पहले ही हमारे निजात देता ने इसको हरा दिया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, लफ्ज लफ्ज के अंदर मुकाशफात है। आपको पता है कि जब खुदा अपने लोगों को भेजता है तो क्या के दिलेरी देता था। जब कनानियों के खिलाफ भेजा, अमालिकियों के खिलाफ भेजा, मुदियानियों के खिलाफ भेजा, तो उनको क्या कह के दिलेरी देता कि मैं मुदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, मैं मुदियानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, कनानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, दाऊद मैं फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। खुदा का कलाम बयान करता है इसीलिए वो जूलियत को मारने के लिए इतना दलेर कैसे हो गया, उसे पता था खुदा ने इसे मेरे हाथ में कर दिया है। और आज ये खाली सलीब बताती है, खाली कब्र बताती है कि जो इसको मार के गया, हरा के गया है, उसने पहले ही इसे हमारे कब्जे में कर दिया है। ये पहले ही उसके पांव के नीचे है। सिर्फ हमें यह करने की जरूरत है, इस कलाम के वसीला से अपनी फतह याबी को क्लेम करने की जरूरत है। यीशु मसीह के इख्तियार अथॉरिटी को लेने की जरूरत है और उसको बताने की जरूरत है कि तू तो हारा हुआ है और तेरी शिकस्त तो आज से जो 2000 साल पहले सलीब पर हो चुकी है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है, सारे हथियारों को बांधने की जरूरत है ताकि उसके मुकाबला में हम कायम रह सकें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है ईमान ईमानदारों की मिरास होती है। खुदा का इख्तियार जो ईमानदारों की मिरास होती है। और यीशु मसीह का ये जो इख्तियार था जिसके जरिए से उसने खुदा का कलाम बयान करता है कि इन बदरुओं के लश्करों को निकाला और बांधा और लोगों को आजाद किया, अपने शागिर्दों को भी ये इख्तियार दिया। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, शागिर्दों के ताल्लुक से लिखा हुआ है पाक कलाम के अंदर, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजायब अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर चार पाइयों और खटोलों पर लटा देते थे ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए तो वो दुरुस्त हो जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा कर देते थे, जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम बयान करता है शागिर्दों के जरिए से भी ये इख्तियार जो इस्तेमाल हुआ है। और खुदा का पाक कलाम बयान करता है खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है, वो भी इस राज से, इस भेद से वाकिफ थे, इसके वारिस थे कि उनके मुंह में खुदा का कलाम बयान करता है खुदा की तमजीद, और उनके हाथों में दोधारी तलवार होती थी, खुदा का कलाम होता था। इसलिए वो जेलों के अंदर, आग के अंदर खुदा का कलाम बयान करता है, घबराते नहीं, डरते नहीं। खुदा का पाक कलाम बयान करता है। फिर शागिर्दों के बाद शागिर्दों के जरिए से, कलीसिया के जरिए से, खुदा के खादमों के जरिए से, और आज भी पूरी दुनिया के अंदर खुदा के इस खादम समेत और आप सबके समेत खुदा की कुदरत जो है आज भी इस इख्तियार को, इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करती है अपने जलाल के लिए। खुदा का कलाम बयान करता है कि उसके सब मुकद्दसों को यह शरफ हासिल है, उसके सब मुकद्दसों को यह शरफ हासिल है। अगर वो कमिटेड हो जाते हैं, यीशु मसीह के साथ अपना दिल लगा लेते हैं, तो खुदा का पाक कलाम बयान करता है, फिर वो फरमाता है कि जो कुछ तू बांधेगा वो बंधेगा और जो कुछ तू खोलेगा वो खोलेगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है। इसलिए मेरे चीजों, आज हमें देखने और जांचने की जरूरत है कि आया हमारे मुंह में, हमारे पास ये जो दो हथियार मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे हथियार होते थे, लेकिन उनमें ये दो बुनियादी हथियार जो थे वो बनी इसराइली इस्तेमाल करते थे और फतह याबी आती थी। और उनमें ऐसे एक ये था कि उनके मुंह में खुदा की तमजीद है, प्रस्तशा खुदा का कलाम ये बयान करता है। और दूसरी बात खुदा का पाक कलाम है, फिर वो अबलीस के हर महाज पर हर जगह लड़ सकते हैं। और कलाम जो दोधारी तलवार कहा गया है, दोधारी तलवार इसे इसलिए कहा जाता है जो दाएं तरफ भी काटती है और बाएं तरफ भी काटती है। इसका मतलब यह है कि कलाम में मुकद्दस जो है
कलाम मुकद्दस जो है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है। ये हमारी हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल होता है और दुश्मन पर अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये है दो-धारी तलवार, ठीक है। ये दुश्मन को काटती है और आपकी हिफाजत करती है। जब आप हमला करते हैं तो दुश्मन के टुकड़े टुकड़े करके रख देती है। इसलिए आज देखिए कि जब कलाम पढ़ा जाता है तो अबलीस को किस तरह से आग लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं इस कलाम के। अभी मैंने चंद एक दुआइयों में से आपको बताइए कि उस बेटी ने बताया था कि आग किस तरह से जल रही थी, ठीक है। जो पिछले साल वो बेटी हमारे कलीसिया में थी तो वो किस तरह से बताती थी, लोग हैरान हो जाते थे कि वो बदरूओं को जलता हुआ देखती थी और आग को नाज़िल होती देखती थी। किस तरह से लश्कर आसमान से उतरते थे और इब्लीस के लश्करों को वो भगाते थे। ये निजात दहिंदा की कुदरत का कमाल है। इसलिए मेरे अजीजों, और बहुत सारी बातें इस तलक से की जा सकती हैं। यही कहना चाहता हूं कि आज अपने आप को परखें, सिर्फ रस्मी या रूटीन की दुआएं करने वाले ना बने, बल्कि अपनी जिंदगी में फतहमंदी की जिंदगी गुजारें। क्योंकि हमारा निजात दहिंदा जो है वो हमें फतह याब देखना चाहता है, सरफराज देखना चाहता है, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए मैं गीत खुदा किस तरह के लिए